Yes, sir. So today we are going to start mole concept. So I think नाम से पता चलता है कि what should be the main focus point in this chapter, that is mole, right? Yes, sir. Directly इस chapter में whatever the question comes in the exam, but this chapter should be the central point of whole physical chemistry because जो भी फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स यू विल डू जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होगा एंड क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस होगा, you have to know the calculations of moles, right? So that is very important. So whatever we are going to learn today or in this chapter, that will be very important for application in all the physical chemistry chapters where calculations are required regarding chemical equations, right? Yes, sir. Okay, so let us start. So tell me, what do you know by mole? Mole का मतलब क्या होता है? What do you mean by mole? Sir, number of atoms per molecule. क्यों? मॉलिक्यूल छोड़ के नहीं हो सकता है क्या? सिर्फ मॉलिक्यूल पे ही हो सकता है? Simply, what is mole? What do you mean by mole? तो देखो, मोल क्या है? जैसे ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, these are all units of substance, right? जिससे तुम किसी भी substance को quantify कर सकते हो. Similarly, mole is also an unit of quantity, right? But what is the special use case of mole? So this is the quantity, unit of quantity to quantify microscopic particles. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को क्वांटिफाई करने के लिए ये यूनिट यूज होता है. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब जो तुम्हें नेकेड आई से नहीं दिखता है. Okay, for example, in context of chemistry, what will be the important microscopic particles? It will be electrons, protons, neutrons, Proton, neutron, atom, atoms, molecules, molecules, ions. ions, right? Yes, sir. And you will see in 2019, mole is also accepted as SI unit of substance, right? Yes, SI sir. unit of substance. Okay, so you can see that the importance of this is very high. So my Yes, question is, sir. एक चीज बताओ, एक ड्रॉप वाटर में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स होगा? इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर, जस्ट आई विल गिव यू टू ऑप्शंस. एक हो सकता है कि लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, इनफाइनाइट, वेरी स्मॉल नंबर्स. तो व्हाट यू वांट टू चूज? सर इंफिनिटी हो सकता है. राइट, सो देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो तुम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, राइट? यस सर. तो फिर ये जो लार्ज नंबर, किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है वो इतना लार्ज नंबर में होता है कि उसको क्वांटिफाई करने के लिए जो यूनिट होना चाहिए, दैट इटसेल्फ शुड डिफाइन वेरी लार्ज नंबर, यस सर. राइट? जो यूनिट होना चाहिए दैट इटसेल्फ शुड डिफाइन वेरी लार्ज नंबर, ताकि तुम किसी भी माइक्रोस्कोपिक एंटिटी में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को क्वांटिफाई कर सको. ठीक है? यस So सर. you can see that 1 mole is basically 6.022 into 10 to the power 23 particles, which is very large number. Okay, and यस this सर. number is known as Avogadro numbers. Okay, I have this part, it is clear. यस सर, इट इज क्लियर. Okay, now let us understand. So let us say, let us take किसी atom ले लेते हैं. तो atom को कैसे represent किया जाता है? Let's say X is the symbol of the element, A is the mass number, Z is the atomic number, right? यस सर. एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर इक्वल्स ऑफ टू नंबर इलेक्ट्रॉन्स. ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट फॉर न्यूट्रल एटम यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एनी चार्ज स्पीसीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? यस सर. और मास नंबर क्या होता है किसी एटम का? इट इज न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन. प्लस प्रोटॉन. ठीक है? सो व्हाई वी आर discussing atom here? Because microscopic particle लेके काम करना है and all the microscopic particles are coming from the atom. Electron, proton, neutron, subatomic particles है.
एटॉम मॉलिक्यूल साइंस जो भी है एटॉम से आ सकता है, राइट? तो पहले यस एटॉम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ओके सर. So let us get the data of the subatomic particles. सबएटॉमिक पार्टिकल्स का डेटा, क्योंकि इसको लेके ही काम करना है तो पहले इसका डेटा ले लेते हैं. So look at the data. So you can see यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास एंड चार्ज इज गिवन इन एसआई यूनिट्स. मास इज गिवन इन किलोग्राम एंड चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम. यस ठीक सर. है, तो सर यहाँ व्हाट से इज द मीनिंग ऑफ AMU? आई विल कम टू दैट. उसको अभी छोड़ो, आई विल कम टू दैट. ठीक ओके है, सर. एएमयू पे छोड़ो, पहले केजी पे देखो. तो if I ask you to compare the mass of proton, neutron and electron, can you tell me who is the heaviest particle here? सर इलेक्ट्रॉन इज द हेवीएस्ट पार्टिकल. Who? सर इलेक्ट्रॉन. Electron is the heaviest particle. Are you sure? यस सर. 10 का पावर -31 है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इट इज 10 टू द पावर -27. माइनस पे है पावर. अब बताओ क्या होना चाहिए? 10 का सर पावर न्यूट्रॉन. -20. न्यूट्रॉन का ज्यादा होगा. यस सर. Well, I can see that 10 to the power -31 and 10 to the power -27. 10 to the power -27 is large, negative power है. And उसमें I यस can सर. see प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का slightly ज़्यादा होगा. And that we can compare with these values, right? यस सर. 1.6726, 1.6749. So I can say neutron is the heaviest particle, right? And lightest particle कौन है फिर? इलेक्ट्रॉन. Electron is the lightest particle. यस And if सर. you look at the ratio, you will see that mass, if you take the ratio of mass of electron is to mass of proton, it will be approximately 1 by this. देख सकते हो एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ऑलमोस्ट 183 टाइम्स हेवियर. ठीक है, यस सर. एंड यहाँ से तुम ये भी देख सकते हो कि ये जो mass of proton and mass of neutron are approximately same, but both of them are much greater than mass of electron, right? यस सर. इसका मतलब क्या हुआ? I can ignore mass of electron with respect to proton और neutron. इग्नोर कर सकते हो. यस सर. ठीक है, तो फिर जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मुझे आंसर मत बताओ, बस प्रोसेस बता दो क्या करना है. व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 mole electron in coulomb? What is the charge of 1 mole of electron in coulomb? क्या करना है? What you are supposed to do here? You know the charge of 1 electron, right? यस सर. What is the charge of 1 electron? मतलब चार्ज नाइन. मतलब यहाँ पे we are considering the amount only, plus minus नहीं देखेंगे. The plus minus indicates the nature of charge only. मतलब electron is negatively charged, proton is positively charged. We'll only take the यस सर. amount of the charge. हाँ बताओ. सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. हाँ तो this is the charge of 1 electron. तुम्हें 1 mole electron का चार्ज निकालना है. So what you were supposed to do here? क्या करना है? सर एवोगाड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1 मोल चार्ज आ जाएगा. Right. तो यहाँ पे what I will do? The charge of 1 mole electron should be 1.6. I am taking it approximately 10 to the power -19 coulomb into Avogadro number. Right? 6.022 into 10 to the power 23. यस सर. ठीक है. So approximately this will come as 96,500 coulomb. ठीक है, समझ में आया? यस सर.
So what we have found here, do you know that 96,000, do you know the another unit of electricity called Faraday? No, sir. Don't know. Faraday is another commonly practiced unit of electricity. जैसे Coulomb SI unit है, Faraday is not the SI unit, but definitely that is a commonly practiced unit of electricity or charge. And 1 Faraday is equal to 96,500 Coulomb. So this is the conversion factor between Faraday and Coulomb. 1 Faraday is equal to 96,500 Coulomb. So what we have found out here, कि 1 mole electron carries 1 Faraday charge. Is it clear or not? Yes, sir. 1 mole of electron carries 1 Faraday charge, right? Yes, sir. So can I say कि 1 electron carries 1 unit of charge? पता है? 1 electron carries 1 negative charge, 1 unit negative charge. 1 proton carries 1 unit positive charge, right? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन में अमाउंट ऑफ चार्ज तो सेम होता है क्योंकि दोनों सेम यूनिट ऑफ चार्ज कैरी करता है, बट वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, राइट? Yes, sir. So let me write that 1 mole of electron carries 1 Faraday charge. ठीक है? Yes, sir. Can I say कि 1 mole कोई भी 1 unit charge मतलब 1 Faraday? 1 mole of 1 unit charge मतलब 1 Faraday, वो तुम इलेक्ट्रॉन ले लो या प्रोटॉन ले लो, कुछ भी ले लो, अगर 1 unit charge है तो 1 Faraday होगा उसमें. Can I say Yes, that? sir. यहाँ पे Yes, मैंने sir. 1 mole इलेक्ट्रॉन लिया. इलेक्ट्रॉन मतलब 1 यूनिट चार्ज. 1 mole ऑफ 1 यूनिट चार्ज मतलब 1 Faraday चार्ज, राइट? तो 1 mole प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा Faraday में? सर पॉजिटिव चार्ज हो जो सर इलेक्ट्रॉन का है But we are वही वाला. only considering the amount. तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दोनों में अमाउंट तो सेम ही होता है. तो Yes, अगर sir. दोनों का ही मैं 1 मोल ले लूं तो Faraday में कितना चार्ज होगा उसमें? Faraday में कितना चार्ज होगा? Can you tell me quickly? सर 1 मोल में जितना चार्ज है सर इक्वल्स टू 1 फैराडे में उतना ही चार्ज होगा. तो फिर 1 Faraday होगा, राइट? तो गिव मी Yes, द sir. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. तो फिर 1 मोल Na प्लस में कितना Faraday चार्ज होगा? 1.5 मोल्स ऑफ SO4 माइनस में कितना Faraday चार्ज होगा? एंड 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस में कितना Faraday चार्ज होगा? कैन यू टेल मी क्विकली? तो Na प्लस कितना यूनिट चार्ज कैरी कर रहा है? सर 1 यूनिट. तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 Faraday चार्ज होता है तो 1 मोल Na प्लस में कितना होगा? कितना सर होगा? 1 फैराडे. 1 Faraday होगा क्योंकि दोनों में ही 1 यूनिट चार्ज है. यस सर. ठीक है. सो इफ आई से SO4 माइनस कितना यूनिट चार्ज होता है इसमें? सर 2 माइनस का मल्टीप्लाई होगा 1.5 से. माइनस तो नहीं, वी आर नॉट कंसीडरिंग प्लस माइनस, तो सिंपली यहाँ पे 2 सर 2 यूनिट चार्ज है, मल्टीप्लाई होगा. so it should be 1.5 into 2 Faraday. सर 3 फैराडे टोटल. ठीक है. If I say 10 moles of aluminum 3 plus, so what will be the Faradays of charge? सर 10 into 3 so 30 फैराडे चार्ज. It should be 30 Faraday. I hope it is clear. यस सर. ठीक है. तो फिर यहाँ पे और एक प्रॉब्लम करते हैं. This is the question. How many moles of electron will weigh 1 kg? मतलब 1 kg वेट में कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? तो इसको कैसे अप्रोच करना है इस प्रॉब्लम्स को? हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? सर मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. So you will get the mass of 1 mole electron, right? मतलब Yes, if you sir. multiply mass of electron with Avogadro number, you get mass of 1 mole of electron.
फिर यस सर। फिर सर क्या करना है? तो एक काम करते हैं, तो जो हमें निकालना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लेट्स कंसिडर एक्स मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है, तो अलजेब्रा पे ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है ना। नाउ यू हैव यस सर। ऑलरेडी टोल्ड मी दैट मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करना है, वी हैव टू डू 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, that is mass of one electron. इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, you will get one mole mass of one mole electron, वन right? मोल इलेक्ट्रॉन। And इसको तुम x से मल्टीप्लाई करो, this is the mass of x moles of electron. यस सर। So can I say as per the question given this is equal to 1? यस सर। बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो सर फिर x अगर निकालना है तो 1 बाई तो नाइन फिर पॉइंट x वन इंटू टेन निकालना टू द है। पावर Look, 31। I don't need the calculation in the class. तुम्हें कैलकुलेशन करना सबको आता है, राइट? तुम्हें यस बस सर। x निकालना होगा, मैं तुम्हें फाइनल इक्वेशन तक यहाँ पे लिख दूंगा, जो भी वैल्यू पुट करना है उसको लिख दूंगा, बट द कैलकुलेशन आई लीव इट टू यू। अगर तुम गलत करोगे तो गलत होगा, अगर सही करोगे तो सही होगा, राइट? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कैलकुलेशन, आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस। ओके ओके, सर। तो यहाँ से आई थिंक यू कैन फाइंड द x, राइट? यस सर। चलो, ठीक है। तो नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस कि व्हाट इज एटॉमिक मास? कैन यू टेल मी व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है? सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो नाम के अंदर ही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास मतलब सिंपली मास ऑफ वन एटॉम, यही तो होता है ना। यस सर। यस मतलब सर। यू डोंट नीड टू कॉम्प्लिकेट इट, अदरवाइज सिंपल सोचो, सिंपल करो। तो एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन एटॉम, ठीक है। और यू कैन से वेटेड एवरेज मास ऑफ वन एटॉम। ये वेटेड एवरेज क्यों मैंने बोला कि अगर 100 एटॉम्स होता है किसी एलिमेंट का, तो उसमें आइसोटोप्स भी हो सकता है, यस सर। ठीक है। तो इन दैट केस एक एटॉम का मास मतलब एवरेज हो जाएगा, यस सर। ये और नो? यस सर। तो अगर एक से ज्यादा एटॉम है और उसमें आइसोटोप्स होता है, तो अगर पर एटॉम मास निकलना है तो वेटेड एवरेज हो जाता है। तो मैंने इसलिए लिख दिया कंसिडरिंग द आइसोटोप्स, ठीक है। बट नॉर्मली एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटॉम, राइट? यस सर। अब एक चीज बताओ कि एटॉम तो मोस्टली एम्प्टी स्पेस, तो एटॉम का जो मास होगा दैट शुड बी द एक्यूमुलेटिव मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यही होना चाहिए। यस सर। तो यहाँ पे देखो, लेट्स टेक एन एलिमेंट, उसका एक एटॉम लेते, ठीक है, इसका सिंबल एक्स से, दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज द मास नंबर, राइट? तो इसमें व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन? कितना प्रोटॉन है इसमें? जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर जेड है, तो प्रोटॉन्स कितना होगा? सर जेड। जेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा अगर ये न्यूट्रल एटॉम है? अगर प्रोटॉन्स जेड है तो इलेक्ट्रॉन्स भी जेड ही होगा, न्यूट्रल एटॉम है, राइट? यस सर। एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हियर? न्यूट्रॉन्स कितना होगा? सर ए। ए माइनस जेड, यस सर। है ना? यस सर। ए क्या होता है? मास नंबर इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन्स। तो तुम मास नंबर से अगर एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? यस सर। तो मुझे मास ऑफ एन एटॉम निकालना है, तो आई हैव एडेड व्हाट? z into mp. mp is the mass of one proton and total z number of protons are there. So this is the total mass of all the protons. Neutrons कितना है? a minus z. इसको तुम mass of neutron से multiply करोगे तो this will be the mass, total mass of the neutrons. And electrons कितना है? z. तो इसको me से multiply करो mass of one electron से, तो you will get the total mass of electrons, right? यस सर। तो दिस शुड बी द टोटल एटॉमिक मास, मतलब मास ऑफ एक एटॉम तो यही होना चाहिए ना, सारे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो टोटल मास होगा। बट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट पे इग्नोर कर सकते हो, राइट? इट इज वेरी स्मॉल।
तो जब when you Yes, are sir. adding mass of electron to mass of proton or neutron तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो I have approximated the mass of electron as 0 and तुम्हें ये भी पता होगा कि mass of neutron is approximately same as mass of proton। तो इसको मैंने mass of proton approximate कर लिया, राइट? Yes, sir. ठीक है ना? तो what you are getting here, तो यहाँ पे z into mp और यहाँ पे minus z into mp that will be cancelled out। बचा क्या? a into mp। MP. Do you get me or not? Yes, sir. चलो, तो फिर एटॉमिक मास क्या बना? उसका मास नंबर इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। Mass of proton proton. ठीक है, अब ये जो मास ऑफ वन प्रोटॉन है उसको 1 AMU माना जाता है। देखो, ग्राम, किलोग्राम, दिस आर द यूनिट ऑफ मास जो मैक्रोस्कोपिक एंटिटी को क्वांटिफाई करने के लिए यूज होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल में माइक्रोस्कोपिक यूनिट होना चाहिए विच इज कन्वीनियंट टू यूज। तो उसके Yes, लिए sir. यूनिट बनाया गया विच इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड डाल्टन। ठीक है, और Yes, sir. डाल्टन। तो 1 AMU क्या है? 1 AMU इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तुम AMU के बारे में पूछ रहे थे। नाउ यू हैव द AMU। Yes, sir. तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन AMU। तो AMU क्या है? What is AMU? AMU, or you can also say U. This is nothing but mass of a proton और mass of a neutron और उसका वैल्यू क्या होता है? 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। ठीक है, Yes, sir. and you will see that अगर तुम 1 को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो भी तुम्हें यही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या मिला मुझे? AMU के साथ ग्राम का रिलेशन। दिस इज द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन AMU एंड ग्राम। AMU हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक एंटिटी के लिए। समझ में आया? Yes, sir. सर 1.66 जो वैल्यू आया है वो वैल्यू कहाँ से आया? इट इज अ मास ऑफ प्रोटॉन, राइट? मतलब प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास कहाँ पे आया? कहाँ से आया? ये तो मास ऑफ प्रोटॉन है। ओके सर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, तो फिर व्हाट कैन आई से? किसी भी ये जो एटॉम का मास नंबर है, देखो एटॉमिक मास ये मास नंबर से एक्सप्रेस किया गया है बट द यूनिट इज एम, राइट? यस सर। तो क्या तुम बोल सकते हो कि इफ आई टेक 6, मतलब ये जो कार्बन एटॉम है इसका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए फिर उसके हिसाब से? कार्बन का मास नंबर 12 है, तो एक एटॉम का मास क्या होना चाहिए फिर? इस एटॉम का मास क्या है? AMU, A इज द मास नंबर। तो कार्बन का मास नंबर 12 है, तो एक कार्बन एटॉम का मास क्या होना चाहिए फिर? सर 12 AMU। 12 AMU, right? तो can I also write that 1 AMU is equal to 1/12 of mass of 1 C12 atom? ठीक है, एक C12 एटम का मास क्या है? 12 AMU। तो उसका 1/12 क्या होता है? 1 AMU। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन होता है AMU का, ठीक है, ये IUPAC का डेफिनेशन। IUPAC 1 AMU को ऐसे डिफाइन करते हैं। समझ में आया? यस सर। सेम थिंग अगर तुम ऑक्सीजन O8 और 16, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 लेते हैं लेट्स से, तो इफ आई टेक 1 ऑक्सीजन एटम तो उसका एटॉमिक मास क्या हो? 16 AMU। तो उसका 1/16 ले लो, इट विल बिकम 1 AMU। 1 AMU। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो एटॉमिक मास तो समझ में आ गया। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास?
ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास एंड व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? एटॉमिक मास हो गया, अगर मास नंबर को हम एमयू से एक्सप्रेस करेंगे तो एटॉमिक मास मिलेगा। नाउ व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? पता है क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ, अगर तुम एटॉमिक मास को और अगर तुम मास नंबर को ग्राम पे एक्सप्रेस करो, एटॉमिक मास क्या होता है? जब तुम मास नंबर को एमयू पे एक्सप्रेस करते हो तो वो एटॉमिक मास होता है। अगर सेम मास नंबर को तुम ग्राम पे एक्सप्रेस करोगे तो ग्राम एटॉमिक ग्राम मास। एटॉमिक मास हो और यू जाएगा। कैन से एटॉमिक मास को तुम ग्राम पे एक्सप्रेस करो, यू विल गेट द ग्राम एटॉमिक मास, राइट? यस सर। बट जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है ग्राम एटॉमिक मास का, वो क्या होता है? दैट इज मास ऑफ 1 ग्राम एटॉम। ठीक है, यहाँ पे ग्राम एंड एटॉम दे आर नॉट टू सेपरेट वर्ड्स, दे आर ए कलेक्टिव वर्ड। ये एक साथ है ग्राम एटॉम। 1 ग्राम एटॉम मतलब 1 मोल ऑफ एटॉम्स। ठीक है, यस जब सर। भी ग्राम एटॉम ग्राम मॉलिक्यूल ऐसे एक साथ होगा तो यहाँ पे एटॉम मॉलिक्यूलर इंडिकेटिंग द पार्टिकल विच वी वांट टू क्वांटिफाई। तो 1 ग्राम एटॉम मतलब क्या हो गया? 1 मोल एटॉम्स। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलता हूँ तो इट शुड बी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? यस सर। तो तो सर फिर इसमें जो Na एटम्स लिखा हुआ तो सर वो तो एवोगाड्रो नंबर से होगा। राइट, ये एवोगाड्रो नंबर, तो 1 मोल एटॉम्स मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटॉम्स। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया? मास ऑफ 1 ग्राम एटॉम और 1 मोल एटॉम्स और एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटॉम्स, ये हो यस गया ग्राम एटॉमिक मास। यस सर। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू रिलेटिव एटॉमिक मास और आरए। अब एक चीज देखो, रिलेटिव मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, तुम्हारा यस सर। जो भी काजिन्स होगी, मतलब अगर तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसा काजिन है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर लिया है तो ही और शी विल बी यूज्ड एज ए रेफरेंस फॉर यू, राइट? सब बोलेगा कि उसके जैसा बनना है, राइट? तो देयर इज अ कंपैरिजन, देयर इज अ रेशियो, तुम जो भी बनोगे उसके हिसाब से देखा जाएगा, राइट? यस सर। तो रिलेटिव मतलब एक रेशियो होता है। रेशियो में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है उसमें रेफरेंस होता है, जो न्यूमरेटर होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, राइट? यस सर। यस और नो? यस सर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? तो यू आर कंपेयरिंग मास ऑफ एन एटॉम विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस मास। डिनोमिनेटर पे ये रेफरेंस मास क्या होता है? दिस रेफरेंस मास इज नथिंग बट 1 एम। तो इसमें रेफरेंस क्या यूज होता है? 1 AMU, जिसको तुम 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम इसके हिसाब से भी लिख सकते हो, राइट? ओके सर। सर सी और 12 के अलावा कोई और एटम भी ले सकते हैं क्या? हाँ, तो 1 AMU तो तुम किसी भी एटम से कर सकते हो, बट C12 IUPAC कन्वेंशन है, दैट इज वाई इसको लिया जाता है। ओके सर। ठीक है, तो न्यूमरेटर पे क्या है? मास ऑफ 1 एटम मतलब एटॉमिक मास है, विच इज AMU। यस सर। यस और नो? यस सर। वी आर यूजिंग दिस एटम, तो इसका एटॉमिक मास इज AMU और रेफरेंस मास क्या है डिनोमिनेटर पे? 1 AMU। तो AMU विल बी कैंसिल्ड आउट, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? ए। इज इट क्लियर? यस सर। तो फिर एक चीज बताओ यार, लेट्स टेक O816। तो पहले तो इसका एटॉमिक मास बताना है, ठीक है? देन इसका ग्राम एटॉमिक मास बताना है एंड देन यू हैव टू टेल द रिलेटिव एटॉमिक मास। जल्दी बताओ। सर इसका एटॉमिक मास होगा सर 12। 12 कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो मास नंबर 16 है। ओके सर। यहाँ पे मास नंबर क्या है? 16 है। तो फिर एटॉमिक मास क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, एटॉमिक मास क्या होगा यहाँ पे? सर इसी 16 यू। 16 AMU, करेक्ट, सो इट शुड बी 16 AMU। यस सर। तो फिर ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा इसका? सर 16 ग्राम। 16 ग्राम होगा। वेरी गुड।
तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? सर 16। राइट, सो दिस मस्ट बी यूनिटलेस। आ गया समझ में? यस सर। तो अगर इफ आई आस्क यू कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में हाउ मेनी moles of oxygen atom is present, what should be the answer? there is 64 gram of oxygen, तो उसमें how many moles of oxygen atom is present, can you tell me? सर 64/16 करना होगा, मास बाय मोलर मास करना होगा। राइट, तो So, यहाँ पे मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास, बिकॉज द पार्टिकल मेंशन्ड इज एटम, यस सर। राइट? यस सर। ओके, तो सर ऑक्सीजन का मास तो 16 होता है सर, 16 इंटू 2 करना होगा क्योंकि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नहीं 16 into 2 क्यों करना है? I never said molecules, I said how many moles of oxygen atom, right? यस सर। तो why are you considering O2 molecule? तुम्हें O2 molecule तो नहीं लेना है, ऑक्सीजन एटम लेना है। तो ये 16 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यस सर। राइट? दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो फिर 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल एटम्स होगा? हाउ मेनी मोल्स? सर 4। 4 मोल्स। तो क्या करना है हमें? जब भी तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पूछा जाता है तो गिवन मास जो है उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड डिवाइड कर दो। करना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस इज 4 मोल्स, ठीक है? Now यस if I ask you how many oxygen atoms are present in 64 gram of oxygen, so what should be the answer here? एक मोल एटम मतलब कितना एटम होता है? 1 मोल एटम मतलब कितना एटम होता है? जल्दी बताओ। 1 मोल में कितना होता है? सर इतना जल्दी भूल गए? 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर होता है ना? यस सर। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो 4 मोल में कितना होगा फिर? सर 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर्स। तो मुझे ऑलरेडी 4 मोल्स ऑफ एटम्स मिल गया, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स शुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये समझ में आया? यस सर। चलो सही है। दिस इज 4 इंटू एन, ठीक है? यस सर। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू दैट पार्ट। मैंने बताया था शायद कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो वेटेड एवरेज मास ऑफ वन एटम। मैंने वेटेड एवरेज ये वाला पार्ट मेंशन किया था, ये सुनो। यस सर। तो एक चीज बताओ, लेट्स से atomic mass calculation from isotopes। तो क्लोरीन को एज ए रेफरेंस एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से क्लोरीन का 2 आइसोटोप, ये क्लोरीन का 2 आइसोटोप, एक होता है Cl 1735 एंड जो दूसरा होता है दैट इज 1737। तो ये दोनों आइसोटोप, ठीक है? दोनों का परसेंटेज एबंडेंस इज आल्सो गिवन इन द नेचर। इसका परसेंटेज एबंडेंस क्या है? लेट्स से 75%।
और इसका क्या है 25। 25%. दैट इज द परसेंटेज ऑफ नेचुरल. ये लेट से मोल परसेंटेज, नॉट मोल. ठीक है, तो बताओ Yes. ये परसेंटेज एबंडेंस है ये दोनों आइसोटोप का. तो हाउ डू यू फाइंड द एटॉमिक मास हियर? इसका एटॉमिक मास क्या होगा, तो कैसे करना है? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू एटॉमिक मास मतलब वेटेड एवरेज, राइट? Yes, sir. एटॉमिक मास मतलब वेटेड Weighted एवरेज average. मास ऑफ वन एटम. तो व्हेन वी आर डीलिंग विद परसेंटेज, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना लेना है हमें? परसेंटेज पे डील कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आई शुड टेक हियर? 100. Yes, sir. लेट अस से यहाँ पे 100 क्लोरीन एटम्स, ठीक है, उसमें से 75 है क्लोरीन 35 एंड 25 है क्लोरीन Chlorine 37. 37. मुझे एटॉमिक मास निकालना. एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज. वन. So can I say atomic mass is, since it is a weighted average, so this is nothing but atomic mass is nothing but total mass of atoms by total number of atoms. Yes, sir. That should give you the weighted average mass of one atom. Yes, sir. Average तो यही होता है ना? Yes, sir. तो बता सकते हो इसका एटॉमिक मास फिर क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो 100 है, तो टोटल मास ऑफ क्लोरीन एटम्स क्या होगा? तो कहना इसे कि यहाँ पे जो एटॉमिक मास होगा डिनोमिनेटर पे आई विल डायरेक्टली राइट 100. 100. उसमें से 75 जो है उसका Cl35 है, तो 75 इंटू 35 AMU प्लस 25 इंटू 37 37. AMU. तो इसको कैलकुलेट करो, दिस विल कम एज 35.5. 5 AMU. तो इसका एटॉमिक मास क्या हो गया 35.5 5 AMU. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, सर 35.5 सर दोनों का ही आएगा ना एटॉमिक मास. दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. अब ये क्लोरीन का एटॉमिक मास में दोनों आइसोटोप का अकाउंट लिया गया है, राइट? वी हैव टेकन द वेटेड एवरेज फॉर बोथ द आइसोटोप्स. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. इफ आई आस्क यू कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है बट मास नंबर होल नंबर पे क्यों होता है, बता सकते हो? किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शनल हो सकता है, जैसे क्लोरीन का 35.5, बट मास नंबर जो होता है दैट इज ऑलवेज अ होल नंबर. ये क्यों होता है? क्योंकि सर जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है कि मास तो मतलब एक ही जगह पे ये रहता है, कंजर्व रहता है, तो सर वो होल नंबर में ही आना चाहिए, वो फ्रैक्शन में तो नहीं. ये फ्रैक्शनल में क्यों आ रहा है? जैसे क्लोरीन का 30.5 फ्रैक्शनल पे क्यों आ रहा है? बिकॉज यू हैव टेकन the count of all the isotopes of that element present in the nature with respect to their percentage abundance. ठीक है, तो इस एलिमेंट का जितना भी एटम है, जितना भी आइसोटोप्स है, वो सबको अकाउंट पे लिया गया है, राइट? दिस इज अ वेटेड एवरेज, दैट इज व्हाई इट कैन बी फ्रैक्शनल. जब हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बोलते तो you have to consider all the isotopes of that element, right, present in the nature. But when I am talking about mass number, so we are talking about a specific isotope. The mass number sir. of chlorine 35 is 35. Cl37 का मास नंबर 37 होता है. तो ये जो आइसोटोप्स होता है उसका मास नंबर अलग होता है. एंड मास नंबर कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कभी फ्रैक्शन पे नहीं मिलता है.
Yes, sir. दिस इज ऑलवेज अ होल नंबर. ये फ्रैक्शनल क्यों होता है? बिकॉज दिस इज वेटेड एवरेज. Yes, एवरेज sir. फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है ना. Yes, sir. जा, इफ आई गिव यू द सेम क्वेश्चन, घुमा के देता हूं, ठीक है. तो क्वेश्चन इज दैट क्लोरीन का दो आइसोटोप होता है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है. और इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 35.5 एम. तो इसका परसेंटेज एबंडेंस क्या हुआ, इसका परसेंटेज एबंडेंस क्या हुआ, कैसे करना है इसको? बताओ, हाउ कैन आई डू दिस? आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है, एक 75% होगा, एक 25%, ठीक है. Yes, sir. बट हाउ शुड आई अप्रोच दिस प्रॉब्लम? तो अलजेब्रा, इफ आई टेक द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, व्हाट डज दैट से? कि जिसे निकालना है उसको x% मान लेते हैं. और फिर दूसरा हो जाएगा 1 - x. 100 माइनस एक्स, 100 परसेंटेज - मतलब x. 100 माइनस एक्स, ठीक है. Yes, sir. तो एटॉमिक मास क्या होता है? 30. एटॉमिक मास जो 35.5 है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जो हम ऑलरेडी Yes, sir. 100 ले सकते हैं क्योंकि परसेंटेज पे डील कर रहे हैं, ठीक Yes, है. sir. उसमें से देयर आर एक्स एटम्स जो 35 है, तो यहाँ पे 35 करेंगे, और बाकी 100 माइनस एक्स जो है वो 37 है, इंटू 37. 37 से तो मल्टीप्लाई इसको करना है. सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड एक्स. इसको सॉल्व करने से तुम्हें एक्स मिल जाएगा, Yes, sir. ठीक है. Yes, सो sir. दिस इज द टेक्निक जहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा एंड दैट विल टेक सम टाइम. जो शॉर्टकट क्या होता है? व्हाट इज द शॉर्टकट हियर? शॉर्टकट, आई विल टेक ए स्केल ऑफ एटॉमिक मास. ये एटॉमिक मास का स्केल है, ठीक है. इसमें क्या करेंगे? ये स्केल का जो लेंथ है वो 35 AMU टू 37 AMU, Yes, sir. मतलब दोनों आइसोटोप मिनिमम, ये मिनिमम वाला है और दिस इज मैक्सिमम. तो ये मिनिमम टू मैक्सिमम इस रेंज पे ये स्केल होगा, राइट. और जो एटॉमिक मास होगा वो वेटेड एवरेज है, तो ये दोनों वैल्यू के बीच कहीं पे आएगा. यू गेट मी और नॉट? Yes, यस और sir. नो? तो ये एटॉमिक मास का स्केल है, वो 35 टू 37 इसके बीच होगा, राइट. Yes, sir. और जो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दैट विल कम बिटवीन दिस टू वैल्यूज, मतलब ये स्केल के अंदर कहीं पे होगा. नाउ इफ आई से, अगर यहाँ पे एटॉमिक मास इज क्लोजर टू 35, ठीक है. यस और नो? एटॉमिक मास Yes, जो sir. मिला है क्लोरीन का दैट इज क्लोजर टू 35, तो इसका मतलब किसका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए नेचर पे? Cl35 का या Cl37 का? सर 35 के क्लोजेस्ट है, सर 35 का राइट. तो होगा. अगर इसका क्लोजर है, इसका करीब होगा. सो व्हाट आई विल डू, सो लेट अस टेक, लेट्स से दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन व्हिच इज क्लोजर टू 35, ठीक है. तो क्या Yes, sir. करेंगे? मुझे अगर परसेंटेज ऑफ Cl35 लेना है तो डिनोमिनेटर पे आई विल टेक द लेंथ ऑफ द स्केल, ठीक है. लेट्स से दिस इज ए मिनिमम एंड दिस इज ए मैक्सिमम, मतलब जो दो आइसोटोप का मिनिमम एंड मैक्सिमम एटॉमिक मास है. तो एट द डिनोमिनेटर आई विल टेक द लेंथ ऑफ द स्केल, राइट, व्हिच इज ए मैक्स माइनस ए मिनिमम, ठीक है. Yes, sir. एंड न्यूमरेटर पे हम क्या लेंगे? न्यूमरेटर पे मुझे अगर 35 का परसेंटेज निकालना है तो मैं दूसरा वाला जो आइसोटोप है उसके साथ ये एटॉमिक मास का डिफरेंस लेंगे. मुझे निकालना है इसका, तो मैं इसका डिफरेंस लूंगा. सो इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी atomic mass, let's say this is atomic mass minus A max. yes or no? Yes, sir. तुम्हें निकालना क्या है? परसेंटेज ऑफ मिनिमम एटॉमिक मास वाला जो आइसोटोप है उसका परसेंटेज निकालना है.
तो मैं क्या लूंगा डिफरेंस, तो फिर न्यूमरेटर पे आई विल टेक द डिफरेंस विद द अदर वन इनटू 100। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मुझे ए 35.5 माइनस 37 और नीचे 2 है, डिफरेंस 35 to 37 इट इज 2 इंटू 100। तो ऊपर 1.5 है, नीचे सो इट इज कमिंग एज 75। इसका परसेंटेज 75 मिल रहा है, इसका 25। दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक, यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। समझ में आया? यस सर। तो इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम देते हैं सेम तरीके से, जस्ट कैन यू अप्लाई द शॉर्टकट ट्रिक हियर? मुझे शॉर्टकट ट्रिक बताना सिर्फ, ठीक है? ओके सर। लेट्स से वी हैव बोरॉन, बोरॉन का दो आइसोटोप है B10 एंड B11, एंड बोरॉन का जो एटॉमिक मास है दैट इज कमिंग एज लेट्स से 10.6 am। So you have to find the percentage of, इसका परसेंटेज निकाल। तो शॉर्टकट ट्रिक कैसे करूं बताओ? टेल मी द प्रोसेस, आई विल राइट इट डाउन। तो मुझे एक स्केल लेना है, राइट? यस सर। तो स्केल का मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है? ये जो स्केल लिया है मैंने एटॉमिक मास का, सर उसका मिनिमम 10 आएगा और मैक्सिमम 11 होगा। 10 एंड 11, राइट? यस सर। अब ये 10.6 है एटॉमिक मास, तो किसका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए? सर ये 11 के करीब होगा या 10 के करीब होगा? सर 11 के करीब होगा। तो फिर 11 का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, राइट? यस सर। लेट्स से दिस इज द, यहाँ पे होगा, तो फिर ये 10.6 है, दिस इज ए मिनिमम, दिस इज ए मैक्सिमम एंड दिस इज ए। ठीक है, निकालना क्या है मुझे? परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ B10। तो B10। मुझे ए मिनिमम इस ये वाला आइसोटोप का परसेंटेज निकालना है, तो डिनोमिनेटर पे क्या लेना है? ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम। डिनोमिनेटर पे इट इज ऑलरेडी 1, राइट? यस सर। 11 माइनस 10, और मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, तो न्यूमरेटर पे मैं कौन सा डिफरेंस लूंगा? 10.6 से किसका डिफरेंस लूंगा? इसका और इसका। सर 10 का। आर यू श्योर? मुझे अगर परसेंटेज इसका निकालना है तो मैं इसके साथ डिफरेंस लूंगा, जिसका निकालना है उसके साथ डिफरेंस नहीं लेना है, दूसरे के साथ लेना है। सर फिर तो नेगेटिव आएगा ना। वो मॉड में है ना, दिस इज इन मॉड, ओके सर। तो मॉड में ले लो, दिस इज 11 माइनस 10.6, ये डिफरेंस ले लो और इंटू 100, तो मैं ये वाला डिफरेंस न्यूमरेटर पे लूंगा। ओके सर। यू कैन सी दिस विल बी कमिंग एज 40%। इसका परसेंटेज क्या है? 40%। इज इट क्लियर? ये शॉर्टकट ट्रिक दिखाया मैंने। यस सर। ठीक है, तुम बता सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस वन? क्या निकालना है तुम्हें? नंबर ऑफ एटॉम्स निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम एटॉम्स निकालना है। ग्राम एटॉम मतलब क्या होता है? ग्राम एटॉम मतलब क्या होता है? अगर ये दोनों एक साथ है ग्राम एटॉम, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ एटॉम्स निकालना है। यस सर। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज माइक्रोग्राम। तो माइक्रोग्राम मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोग्राम मतलब कितना ग्राम होता है?
माइक्रोग्राम मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोग्राम मतलब 10⁻⁻6 ग्राम होता है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ओके, यस सर। तो फिर बताओ यहाँ पे तुम्हें कैसे निकालना होता है? अगर किसी एलिमेंट का मास दिया हुआ है ऑलरेडी एंड वहां से तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटॉम्स निकालना है, तो क्या करना पड़ता है? वी हैव ऑलरेडी डन दिस। वो ऑक्सीजन वाला प्रॉब्लम याद है? यस सर। यस सर। तो क्या करना है? क्या था वो फॉर्मूला? क्या था? मुझे मास लेना है इन ग्राम एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यस सर। तो फिर क्लोरीन का मास मुझे लेना है। पहले मुझे नंबर ऑफ ग्राम एटॉम्स निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटॉम्स निकालना है। यस सर। तो सर इसका जो मास होगा वो सर 71 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम होगा। राइट, और उसको क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? सर 35.5। 35.5। दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। और यहाँ से अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटॉम्स चाहिए तो क्या करना है? सर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाउ वी आर यस सर। गोइंग टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो। Weight of 50 atoms of an element is 3000 AMU. Calculate the number of atoms in 240 gram of the element. राइट, तो बताओ कैसे करना, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? सर वेट ऑफ 50 एटम्स 3000 AMU दिया हुआ है, तो सर राइट, वेट ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 3000 बाई 50। तो फिर ये जो वेट ऑफ मास ऑफ वन एटम कितना आ रहा है? 60 एम। यस 3000 सर। बाई, तो मास ऑफ वन एटम मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ? तो एटॉमिक मास इज 60 एम। यस सर। अब क्या करना? तो आई हैव फाउंड द एटॉमिक मास। सर अब मोल्स निकालना होगा, तो सर गिवन मास। मोल्स के लिए तो तुम्हें ग्राम एटॉमिक मास चाहिए। अगर एटॉमिक मास 16 एम 60 एम यू है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? सर 240 ग्राम उसमें दिया हुआ है सर पहले से। हाँ हाँ, क्या दिया हुआ है? सर 240 ग्राम दिया तो हुआ वो है। ग्राम एटॉमिक मास नहीं है, दैट इज द मास ऑफ द element. That is not the gram atomic mass. That is a given mass, right? तो यस ग्राम सर। एटॉमिक मास तो नहीं है। आई एम सेड अगर एटॉमिक मास 60 एमयू होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? सर 60 इंटू NA। देखो, ये तो बोलना चाहिए था ना, क्योंकि जो अगर एटॉमिक मास एमयू में होता है तो ग्राम एटॉमिक मास ग्राम पे एक्सप्रेस होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है। यस सर। तो ये 60 ग्राम होगा। यस सर। ये सुन लो। यस सर। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटॉम्स क्या होगा? सर 240 बाई 60। राइट, तो यहाँ पे अगर मोल्स ऑफ एटॉम्स मिल गया, दैट इज व्हाट, 240 बाई 60 इज इक्वल तो टू सर 4। 4 मोल्स। हाँ, तो फिर नंबर ऑफ एटॉम्स पूछा है, मोल्स नहीं पूछा है। नंबर ऑफ एटॉम्स क्या होगा? तो तो अगर सर मोल्स 4 है तो नंबर ऑफ एटॉम्स क्या होगा यहाँ पे? सर 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यस सर। तो नाउ देयर इज अ क्विक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ आई टेक वाटर, ठीक है, एंड इफ आई आस्क कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास, what will be the gram molecular mass and what is the relative molecular mass? बताओ जल्दी।
मॉलिकुलर मास क्या हो, देखो एक मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, राइट। यस सर। तो हर एक इस मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी एटम्स है, हर एक एटम का मास लेके अगर तुम ऐड करोगे तो यू विल गेट द मॉलिकुलर मास। यस सर। तो क्या होगा वाटर का मॉलिकुलर मास? सर ऑक्सीजन का तो 16 होता है और 16। हाइड्रोजन का 1 है, तो सर 16 का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ 16? एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या होता है? सर 16 16 16 यू एएमयू होता है, राइट। एम यू। और ये यस सर। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है? यस 1 सर। एएमयू। यस सर। तो तो यहाँ सर पे क्या 2 होगा? है तो 2 into 1 + 16, तो सर 18 AMU। तो ये 18 एएमयू हो रहा है, राइट। दैट इज द मॉलिकुलर मास। तो इसका यूनिट क्या होगा? एएमयू, क्योंकि एटॉमिक मास से ये मिल रहा है हमें। मॉलिक्यूल्स आर यस नथिंग बट द सर। एग्रीगेशन ऑफ एटम्स। तो फिर ग्राम यस सर। ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होगा? सर 18 ग्राम। नाइस, 18 ग्राम। और रिलेटिव मॉलिकुलर मास क्या होगा? सर 18। 18। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो व्हाट इज दिस ग्राम मॉलिकुलर मास? इसको कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन दिस? द ग्राम मॉलिकुलर मास इज सिंपली मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, राइट। जैसे 1 यस ग्राम सर। एटम था तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या है? 1 1 मोल मोल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स और Na मॉलिक्यूल्स। समझ में आया कि नहीं? यस सर। सेम थिंग। वो ग्राम एटम था इसलिए 1 मोल एटम्स ले रहा था वहां पे। यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल है, दैट इज व्हाई 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस है सर। ना। यस सर। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, लेट अस टेक 72 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज देयर? मोल्स ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे? देखो मोल्स कहाँ से मिलता है? मोल्स मिलता है ग्राम मॉलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ से मिलता है, ठीक है। यस सर। तुम बस देखो कि पार्टिकल कौन सा मेंशन हुआ है। अगर एटॉम इज द मेंशन पार्टिकल तो ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल रहता है। अगर पार्टिकल इज मेंशनड एज मॉलिक्यूल तो ग्राम मॉलिकुलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर मतलब कितना होगा? 18 ग्राम में कितना मोल्स है वाटर का? सर 1। तो फिर 72 ग्राम में क्या होगा? तो सर 72/18 तो तो 4। 4 मोल्स हो रहा है ना। तो इसका यस सर। मतलब क्या होगा? W ग्राम बाई, लेट्स से इसको एम मान लेते हैं, तो एम ग्राम, दिस इज ग्राम मॉलिकुलर। तो क्या आ रहा है? 4, यस सर। करेक्ट। यस इफ सर। आई से हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज देयर, कितना मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे? मुझे मोल्स मिल गया है ना, तो नाउ इट इज इजी। 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल है? इशिता, 1 मोल में यस हाउ सर। मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? सर 1 मोल में सर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फिर 4 मोल में कितना होगा? है। तो फिर 4 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? या सर 4 मोल्स 4। होगा? सर 4 into Na। नाइस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कितना हाइड्रोजन एटम्स होगा यहाँ पे? कैसे करना है? तुम देखो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है? सर एक वाटर, 2। देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स कितना है वाटर का? 4 into n है। तो फिर हाइड्रोजन एटम्स क्या होगा?
सर 4 into Na into 2। राइट। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज कितना इलेक्ट्रॉन्स है 72 ग्राम वाटर में। तो हम क्या करेंगे, तुम कैन यू फाइंड कि वन वाटर मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कैन यू फाइंड इट, यस सर। बताओ। तो हर एक एटम पे देखना है ना, तो ऑक्सीजन एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये तो पता है। सर 16। एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, राइट। यस सर। 16 इज द मास नंबर। यस सर। तो फिर एक ऑक्सीजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हम्म। सर 2। एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही सेम होगा ना। यस सर। और ये एक हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, सर 1। राइट। तो हाइड्रोजन एटम कितना है यहाँ पे, सर 2 हाइड्रोजन एटम। तो एक ऑक्सीजन एटम का 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो हर एक का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यस सर। एक वाटर मॉलिक्यूल पे देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, बोल सकता हूँ इन वन वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन एंड हर एक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है। यस सर। तो मेरे पास अगर इतना मॉलिक्यूल से 4 Na एंड हर एक मॉलिक्यूल पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि इफ वी हैव 4 into Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अगर हर एक मॉलिक्यूल पे 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए फिर, सर 10 से मल्टीप्लाई होगा सर। तो 4 4Na into 10 यही होगा। तो यस एक सर। चीज देखो, तो आई कैन फाइंड एनीथिंग फ्रॉम, अगर मोल्स मिल गया तो वहां से मॉलिक्यूल्स एटम्स कुछ भी मिल रहा है। डू यू नो व्हाट इज एटोमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, पता है एटोमिसिटी क्या होता है, नो सर। नहीं पता है। नो सर। Atomicity of a molecule is basically number of atoms present in one molecule, ठीक है। तो इफ आई टेक ग्लूकोज, तो इसका एटोमिसिटी क्या है बताओ, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, सर 24। 24, द एटोमिसिटी इसका 24 होगा। बट इफ आई से व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन दिस मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या हुआ, एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है, तो दिस टाइम द आंसर शुड बी 6, यस सर। ठीक है। यस सर। अब एक चीज देखो, मोल को कैसे डिफाइन किया जाता है, हाउ डू यू डिफाइन मोल। आई टोल्ड यू, अगर इफ यू टेक 1 ग्राम एटम, तो 1 मोल मतलब 1 ग्राम एटम होगा। यस सर। तो मोल 1 मोल मतलब क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल मेंशन्ड। अगर पार्टिकल एटम मेंशन्ड होता है तो 1 मोल मतलब 1 ग्राम एटम, अगर पार्टिकल को मॉलिक्यूल मेंशन होता है
तो 1 मोल मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा, और अगर पार्टिकल आयन होता है तो 1 मोल क्या होगा, 1 ग्राम आयन। ठीक है, 1 मोल कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ द पार्टिकल इज मेंशन, राइट। बट अगर कुछ नहीं मेंशन है, अनलेस अदरवाइज मेंशन, विल कंसिडर 1 मोल एज 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल पकड़ लेंगे, राइट। यस सर। So in that case, molar mass will be the gram molecular mass. अगर और कुछ मेंशन नहीं है तो मोलर मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, सो आई हैव सम क्विक क्वेश्चंस फॉर यू जस्ट फॉर प्रैक्टिस। थोड़ी देर पहले वी आर डूइंग कि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही करना है। You have to count electron, proton and neutron for Na क्लास। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, मास नंबर 23 होता है। ठीक है, क्लोरीन का ये जो आइसोटोप है 17 एंड 35, ये Cl माइनस का तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है, एंड यहाँ पे सल्फेट का भी निकालना है। तो सल्फर का होता है 1632, ये एटॉमिक नंबर मास नंबर दे दिया, एंड ऑक्सीजन का तो पता होगा। ठीक है, तो पहले इसका बताओ, Na प्लस 1123। तो इसमें पहले बताओ प्रोटॉन क्या है इसमें। देखो, किसी न्यूट्रल एटम में अगर तुम कोई चार्ज डाल दो तो उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स चेंज नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस पे कोई चेंज नहीं आता। चेंज जो आता है वो बाहर इलेक्ट्रॉन्स में, राइट। तो पहले यस तुम सर। बताओ, ये जो Na प्लस है इसमें प्रोटॉन्स कितना है। प्रोटॉन्स कहाँ से पता चलता है, एटॉमिक नंबर से पता चलता है। तो प्रोटॉन्स कितना है Na प्लस में, जल्दी बताओ। सर 11। 11। और फिर न्यूट्रॉन्स कितना है, हाउ डू यू फाइंड न्यूट्रॉन्स। सर A माइनस जेड। राइट, तो अगर A माइनस जेड है तो कितना आ रहा है यहाँ पे, सर 23 माइनस 11। मतलब 12 आ रहा है। ठीक है, यस और सर। इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, नॉट एज सेम एज प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है और इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है। सर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इट मस्ट बी 10, राइट। समझ में आएगी नहीं। यस सर। अभी इसमें ये क्लोरीन वाले में, तो इसमें पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बताओ, बाद में इलेक्ट्रॉन देखेंगे। सर सर प्रोटॉन 17 है। राइट, न्यूट्रॉन, और सर न्यूट्रॉन 35 माइनस 17। तो ये 18 हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्लोरीन एटम पे फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और रिमूव करना है। सर ऐड करना है, तो सर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, सर 18 होगा। राइट, तो इट विल बी 18। अब सल्फेट, दिस इज अ पॉलीएटॉमिक स्पीसीज, एक से ज्यादा एटम है, तो यू हैव टू काउंट फॉर एवरी एटम एंड देन ऐड करना है, राइट। यस सर। तो बताओ, तो पहले प्रोटॉन बताओ। तो एक सल्फर में कितना प्रोटॉन है, एक सल्फर में कितना प्रोटॉन है। आई हैव टू काउंट फॉर ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द स्पीसीज, जल्दी बताओ। सर 16 प्रोटॉन। वो तो एक सल्फर में, अब मुझे ऑक्सीजन का भी तो लेना पड़ेगा। सर जल्दी। सर 8, तो सर 16 प्लस 8। प्लस 8 होगा, मुझे तो 4 ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे, मुझे 4 ऑक्सीजन दिख रहा है और तुम सिर्फ एक ऑक्सीजन का काउंट कर रहे हो। सर 16 प्लस 32। 16 प्लस, 32। तो ये 48 आ जाएगा। और न्यूट्रॉन, तो सल्फर का न्यूट्रॉन कितना है, सल्फर का न्यूट्रॉन कितना है। सर सल्फर में टोटल 16 है।
सल्फर में 16 न्यूट्रॉन है और हर एक ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन है? सर 8 8 4 32। तो यहाँ पे भी 8 into 4 हो जाएगा, दैट इज 48। 48। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो अगर ये स्पीसीज न्यूट्रल होता तो यू वुड हैव 48 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, अगर ये न्यूट्रल होता तो। यस सर। बट यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन और यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। सर ऐड इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा? सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इट मस्ट बी 48 प्लस 2, दैट इज 50। ठीक है, यस सर। तो Cr2O7 2 माइनस, ये घर पे करना, क्रोमियम का होता है 24 एंड 52 और ऑक्सीजन का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये घर पे निकाल लेना। ठीक है, ओके सर। तो अब एक चीज देखो, आई विल गिव यू अ मास्टर चार्ट। ठीक है, यस सर। तो जो भी मोल्स रिलेटेड कैलकुलेशन होता है, जो भी मोल्स रिलेटेड कैलकुलेशन होता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मास्टर चार्ट यू कैन कंप्लीट देम or you can do them easily. So this is like time saving techniques. यस सर। दिख रहा है तुम्हें? यस सर। तो एक चीज बताओ, लेट्स से तुम्हारे पास 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स? 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल्स है निकालना है, सो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स? देखो कोई पार्टिकल मेंशन नहीं है, एटॉम मॉलिक्यूल्स आयन मेंशन नहीं है, तो कौन सा पार्टिकल पकड़ना है हमें? सर इट शुड बी मॉलिक्यूल, इफ अनलेस मॉलिक्यूल। अदरवाइज मेंशन। तो फिर बताओ, तो फिर इसमें 64 ग्राम मतलब कितना मोल्स होगा? सर 2 मोल्स। 2 मोल्स होगा। तो हाउ डिड यू डू दैट? तुम 64/32 किए हो। यस सर। तो अगर मुझे मास दिया हुआ है W ग्राम एंड वहां से अगर मोल्स निकालना है, लेट्स से मोल्स इज n, तो क्या ऐसे कैसे निकालना है? आई हैव टू डिवाइड मास बाय मोलर मास, तो यस ऑक्सीजन के सर। लिए जो 32 था। ठीक है, अब मोल्स, अब नाउ लेट्स से यू हैव 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इफ आई से कितना, सो टोटल कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होगा 2 मोल्स में? यू हैव 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा? जल्दी बताओ, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है? ऋषिता, एक मोल में कितना यस मॉलिक्यूल सर। होता है? इन 1 मोल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? एवोगाड्रो नंबर होता है, मतलब क्या यस हुआ? सर। तो फिर कहना है इसे जितना मोल्स मिला है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई 2 मोल करना होगा। ऑक्सीजन मिला था, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय Na टू गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मास से मोल्स कैसे मिलता है? यू हैव टू डिवाइड बाय द मोलर मास। मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे मिलता है? यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, राइट। यस सर। अब मॉलिक्यूल से एटम्स कैसे मिलेगा? सो लेट से तुम्हारे पास 10 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो उसमें कितना ऑक्सीजन एटम होगा? क्या करना पड़ेगा? सर ऑक्सीजन एटम के लिए सर जैसे Na से मल्टी। 10 मॉलिक्यूल्स O2 है, तो उसमें टोटल ऑक्सीजन एटम कितना होगा? फिर हर एक मॉलिक्यूल पे 2 ऑक्सीजन एटम, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद एटॉमिसिटी ऑफ द मल्टीप्लाई करना एलिमेंट, राइट। होगा। यस तुम्हें सर। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मॉलिक्यूल से एटम्स चाहिए तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा एंड विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तुम्हें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई द मॉलिक्यूल्स बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। ठीक है ना? यस सर। जैसे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे 16 इलेक्ट्रॉन्स होता है,
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को तुम 16 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस सर। चलो, तो मास से मोल्स कैसे निकाला जाता है? डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये चार्ट याद रखना है। मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे जाना है? मल्टीप्लाइंग बाय एवोगाड्रो नंबर। मॉलिक्यूल से एटम्स कैसे जाना है? मल्टीप्लाइंग विद द एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कैसे निकालना है? मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करो बाय इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल और प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है? यस सर। और आई थिंक वॉल्यूम भी पता होगा, एटलीस्ट आई होप यू नो दिस। किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 मोल किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है, पता है कि नहीं? नो सर। नहीं पता? नो सर। इफ यू टेक एनी गैस एट एसटीपी, एसटीपी क्या होता है पता है? नो सर। एसटीपी इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है? तो यस बाय सर। वोल्ट कन्वेंशन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे टेम्परेचर क्या होता है? 273.15 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पकड़ लो। एंड जो प्रेशर होता है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है? तो इस कंडीशन पे किसी भी गैस का तुम 1 मोल ले लो, उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, ठीक है? बट जो नया कन्वेंशन है एसटीपी का, उसमें प्रेशर इज सेट एज 1 बार। 1 एटमॉस्फेयर की जगह ये 1 बार लिया जाता है। टेम्परेचर इज सेम, ठीक है? So there is minor adjustment 1 bar. देखो 1 यस सर। atmosphere 1 bar are very close to each other. दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होता है, बट स्लाइट डिफरेंस होता है, ठीक है? एंड दैट इज वाई जो नया कन्वेंशन है उसके हिसाब से 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे होता है 22.7 लीटर, ठीक है? तो अगर न्यू कन्वेंशन बोला जाता है और प्रेशर 1 बार लिया जाता है, तो फिर मोलर वॉल्यूम होगा 22.7 लीटर। बट अगर कुछ नहीं मेंशन्ड होता है, सिर्फ एसटीपी बोला जाता है, ओल्ड न्यू नथिंग इज मेंशन्ड, प्रेशर नहीं मेंशन है, तो विल कंसीडर 22.4 लीटर एज द मोलर वॉल्यूम, ठीक है? तो एसटीपी में ओके सर। किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। सो इफ आई टेक 44.8 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, तो कितना मोल्स होगा उसमें? सर 2 मोल्स। 2 मोल्स। कैसे मिला? वॉल्यूम को, जो भी वॉल्यूम है लीटर में, उसको 22.4 से डिवाइड करना। इफ आई से डिवाइड 2 करके। मोल, इफ आई से 2 मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? सर 44.8 लीटर। राइट, तो तुम्हें 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द यस सर। मास्टर चार्ट व्हिच विल हेल्प यू टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है? और इस चार्ट का हीरो कौन है? मोल। तो तुम्हें कुछ भी दे दे, लेट से तुम्हें किसी क्वेश्चन में मास दे दिया एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी? स्टेप्स क्या होगा? तुम्हें पहले मास से मोल्स निकालना पड़ेगा, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स। एटम्स, ठीक है? मॉलिक्यूल्स लेट से से एन। नंबर ऑफ एटम्स दे दिया और वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एसटीपी। क्या करना होगा? एटम से मॉलिक्यूल्स आऊंगा, मॉलिक्यूल से मोल्स जाऊंगा, मोल से वॉल्यूम निकालूंगा। सिंपल स्टेप्स है, ठीक यस है? सर। तो एक बार यस देख सर। लो, तो लेट अस डू सम प्रैक्टिस। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। तो पहले ये चार्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन टू यू, क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन? सर ग्राम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ CH4। ये ग्राम एटॉमिक मास है। फर्स्ट ऑफ ऑल CH4 तो मॉलिक्यूल है, उसका ग्राम एटॉमिक मास नहीं मॉलिक्यूलर हो सकता। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी नहीं है। इज दैट मेंशन इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? ये सिंपल CH4 का मास लिया गया है, कोई ना कोई मास लिया गया है 1.6 ग्राम। हु टोल्ड यू दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास? CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो उसका फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। तो ये मास दिया हुआ है यस सर। which is 1.6 ग्राम। निकालना क्या है? क्या सर निकाल? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। व्हाट शुड बी योर स्टेप्स? मास से पहले कहाँ पे जाना है? कहाँ पे जाना सर है? मास से। मास डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? मोल से।
यस सर, मास से मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल्स। मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स, दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। यस सर। तो मास से मोल्स कैसे निकालना है? सर टोटल, सर जो गिवन मास है वो टोटल मोलर मास से डिवाइड तो करना मोलार होगा। मास तो निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से, तो इसका मोलार मास क्या है? सर कार्बन का 12 होता है और सर हाइड्रोजन 4 है तो 4 × 1, तो सर 12 + 4 16। 16 ग्राम तो बोलना पड़ेगा ना। तो यस फिर सर। मैं, तो फिर इसका मोल्स क्या होगा यहाँ पे? सर 1.6/16 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया मोल्स ऑफ मीथेन। अब मुझे मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे मिलेगा? सर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। राइट, नाइस। तो ये मिल गया मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेगा वो बताओ। तो उसके लिए तो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, जल्दी बताओ। सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और हाइड्रोजन का 1 है तो 6 + 4 × 1, तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा यहाँ पे? सर टोटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए सर ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है और मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया, तो ये होगा। देखो समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू फिगर आउट द स्ट्रेटेजी, यू हैव टू फिगर आउट द रूट, एंड देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यस सर। क्या बताओगे कि ये वाला कैसे करना है? व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, पहले ये बताओ। इसमें क्या दिया हुआ है एंड क्या निकालना है? तो CH4 का मास दिया हुआ है 80 ग्राम। तो CH4 का मास दिया हुआ है 80 ग्राम। और सर क्वेश्चन क्या मास है? ऑफ इथेन फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन? सर C2H6। राइट। तो क्वेश्चन इज कि 80 ग्राम मीथेन पे जितना हाइड्रोजन एटॉम्स होता है, एट्टी ग्राम मीथेन पे जितना हाइड्रोजन एटॉम होता है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटॉम कितना इथेन पे होगा? व्हाट शुड बी द मास ऑफ इथेन? इसमें सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। यस ठीक सर। है, तो एक काम करो, तो कैन यू फाइंड द हाइड्रोजन एटॉम्स इन मीथेन? तुम्हारे पास मास से हाइड्रोजन एटॉम्स कैसे मिलेगा? यू हैव द सर मास। पहले सर पहले तो CH4 का मोल्स निकालना होगा। राइट, तो कैसे निकालना है मोल्स? सर पहले मोलर मास निकालना होगा जो 12 + विच इज 4 यानी ऑलरेडी 16 16 होगा। ग्राम, हमें पहले क्वेश्चन से पता है। तो मोल्स यस कितना आ सर। जाएगा मीथेन का? सर 80/16 तो 5 मोल्स। 5 मोल्स। अब मुझे कहाँ तक जाना है? हाइड्रोजन एटॉम्स तक पहुंचना है। तो मोल यस से, सर। अब मोल से कहाँ पे जाना है? सर हाइड्रोजन एटम्स का भी सर मोल निकालना होगा। हाँ, तुम निकल सकते हो, और वी कैन सिंपली मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम्स मिल सकते हैं। तो मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे क्या होगे? सर मोल से मॉलिक्यूल्स जो 80/16 निकला है उसको Na से मल्टीप्लाई करना होगा। राइट, तो ये मॉलिक्यूल्स मिल गया। और फिर एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम होता है? मीथेन का एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है, जल्दी बताओ। 1 मिनट सर। CH4 सर फॉर्मूला से देखो, 4। 4 है। तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है, तो क्या करना होगा? सर जो 4 है सर उसको 5 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। 5 से क्यों करना है? मुझे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला है मीथेन का,
मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल पे 4 हाइड्रोजन एटम होता है, तो फिर यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल्स मिल रहा है उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड द हाइड्रोजन एटम। देखो समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो दिस इज द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द इथेन। मुझे इथेन का मास निकालना है, सो मुझे अब हाइड्रोजन एटम से मास तक जाना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक ए ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक। सो आई विल टेक द अलजेब्रिक फॉर्म में जो मास निकालना है उसको x ग्राम पकड़ लेते हैं। यस कैन सर। डू दैट? अब तुम बताओ, ये x ग्राम से तुम हाइड्रोजन एटम्स तक जा सकते हो इथेन का? तो अगर इथेन का मास x ग्राम है तो इसमें कितना, x ग्राम में कितना हाइड्रोजन एटम होगा? तो मुझे सेम जाना है, मास से मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम्स। तो बताओ क्या होना चाहिए फिर? ये x ग्राम में कितना मोल्स है? सर जल्दी। हाइड्रोजन का 1 ग्राम में सर जैसे 4 हाइड्रोजन निकला का है। x ग्राम नहीं है, मास ऑफ इथेन में x ग्राम पकड़ा हो, तो इथेन का x ग्राम में कितना हाइड्रोजन एटम्स है वो निकालना है। तो मास से हाइड्रोजन एटम्स तक कैसे पहुंचोगे? मास से मोल्स जाओ, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम, सेम रास्ता। यस सर। तो बताओ, अगर x ग्राम इथेन का मास है तो उसमें मोल्स कितना होगा? सर इथेन में मास से मोल्स कैसे निकाला जाता है, पहले ये तो बताओ। सर मास बाय सर जो गिवन मास है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना, मोलर मास से मोल, डिवाइड करना होगा। तो मोलर मास तो निकालना पड़ेगा फिर इथेन का ना। यस सर। क्या होगा? क्या होगा इसका मोलर मास? सर इथेन का मोलर मास है 30.07 पॉइंट क्यों ग्राम। आ रहा है? 30 ग्राम। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, 1 into 6, 12 into 2, 30 ग्राम होता है। तो फिर x ग्राम में कितना मोल्स होगा? x/30। यस सर। अब मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे मिलेगा? सर Na से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये इथेन का मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें कितना हाइड्रोजन एटम होगा, क्या करना पड़ेगा? एक इथेन मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है? एक इथेन मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है, फॉर्मूला से बताओ। व्हाट हैपेंड? 1 मिनट सर, कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें कैलकुलेट का क्या है? C2H6 फॉर्मूला है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है नहीं बता सकती हो तुम? सर 6। हाँ, तो बस यही तो बताना है इसमें, व्हाट आर यू कैलकुलेटिंग? तो अगर एक मॉलिक्यूल पे 6 हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन है मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट शुड गिव यू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और एज पर द क्वेश्चन दिस टू आर सेम। यस सर। तो यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हो, मिल जाएगा आंसर। यस सर। ठीक है। यस सर। आई थिंक तुम्हारा एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नो सर। क्या तुम ये वाला कर पाओगी? बस बता दो क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, बस बताओ कि होगा कि नहीं। फॉस्फोरस का जो एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है दैट इज 31। बाकी तुम्हें पता है। देखो क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी कि ये तुम कर पाओगी कि नहीं। देखो एक मिक्सचर है जिसमें 3 फॉस्फोरस का कंपाउंड है, यस सर। H3PO4, PH3 एंड P4O10। हर एक का मास दिया हुआ है, ठीक है। नाउ दे हैव टोल्ड कि इस मिक्सचर में जितना फॉस्फोरस एटम्स है, सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स कितना P4 से मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? यस सर। तो व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हें ये मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स निकालना पड़ेगा, यस ठीक है। सर।
और वहां सर से पहले तो फास्फोरस का जो पूरा मोल निकलेगा तीनों मिक्सचर में से, पहले वो निकालना होगा। तो हर एक का मास दिया हुआ है, तो हर एक का मास से तुम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स निकाल सकते हो। यस सर। मास टू मोल्स जाना है, मोल्स टू मॉलिक्यूल्स जाना है, और मॉलिक्यूल्स टू फॉस्फोरस एटम्स जाना इलेक्ट्रॉन। है। ठीक है, तो ये हर एक का वही करना है, एंड फिर उसके बाद ऐड कर देना है टू गेट द टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स, राइट। यस सर। तो मिक्सचर का फॉस्फोरस एटम्स मिल गया। अब तुम्हें P4 का मास फिर से X पकड़ना पड़ेगा, जैसे हम लास्ट वाला प्रॉब्लम किया। आई लीव दिस फॉर यू। ओके सर। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे। तो ये ट्रिक समझ में आया? जो भी है विल डू स्टेप बाय स्टेप। मोल्स से जाऊंगा, मोल इज द ब्रिजिंग यूनिट, ठीक है। सो वट एवर यस इज सर। गिवन टू यू, वहां से तुम वट एवर दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट, वहां तक पहुंच सकते हो थ्रू मोल्स। हाँ या ना? यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तुम्हारे पास कुछ CO2 है एट द बिगिनिंग, एंड वहां से कुछ CO2 रिमूव हुआ है। तो आफ्टर द रिमूवल व्हाट शुड बी द मास एंड मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO? दैट इज द क्वेश्चन गिवन टू यू, राइट। यस सर। बताओ ऐसे करना है। देखो, अभी तक हमने जो भी सीखा है, द सिंपलेस्ट वे इज कि यू शुड पास टू द मोल्स। तो इनिशियली तुम्हारे पास मास ऑफ CO2 है, कितना है वो? सर 22 ग्राम। तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? मास को किस में कन्वर्ट करना है? सर मोल्स में। कैसे करेंगे? सर गिवन मास बाय मोलर मास। सर मोलर मास आएगा 12 प्लस 16 इंटू 2, तो सर 44। नाइस। तो ये 44 ग्राम इसका मोलर मास है। तो जो इनिशियल मोल्स है, रिमेनिंग मोल्स इज बेसिकली इनिशियल मोल्स तो सर 22 बाई 44, बाय मोल्स 0.5 मोल। removed. So it should be 22 by 44। और जो मॉलिक्यूल्स जो रिमूव्ड हुआ है उसको इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस किया गया है। तो तुम मॉलिक्यूल से मोल्स निकाल सकते हो? यस सर। निकाल सकते हो? सर डिवाइड करके निकालना होगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सर 6, सर एवोगाड्रो नंबर से। राइट। तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻22 है, मैं उसे एवोगाड्रो नंबर से, तो इसको अप्रोक्सीमेटली, तो ये मिल गया मुझे। यस सर। जो रिमेनिंग मोल्स है वो मिल गया। अगर रिमेनिंग मोल्स मिल गया तो रिमेनिंग मास निकाल पाओगे? रिमेनिंग मोल से रिमेनिंग मास कैसे निकालोगे? लेट्स से दिस इज रिमेनिंग मास, तो रिमेनिंग मोल्स दिस। तो यहाँ से रिमेनिंग मास कैसे निकालोगे? मोल से मास कैसे निकाला जाता है? मोल से मास कैसे निकाला जाता है, जल्दी बताओ। सर जो मोलर मास आया था, तो सर इसमें जो ये राइट। आएगा तो उससे ये मल्टीप्लाई रिमेनिंग करना होगा। मोल से इसको 44 ग्राम से मल्टीप्लाई करो, you will get the remaining mass. Is it clear? Let us finish it यस here. सर। So from next class we will continue from the topic called average molar mass. Okay? ओके सर। Chalo, bye. बाय।